Thank you so much, Sumaya, and thank you everyone for joining us. So as Sumaya said, this is our fourth state webinar. This webinar, when we formed this webinar, we wanted that all states should just speak about what progressive steps they have taken. So we are honored to have with us. We have the privilege of having as Honorable Speaker of the Punjab Legislative Assembly, Rana Kanwar Pal Singh. Rana Kanwar Pal Singh, after completing his primary education schooling from Nurpur Bedi district, Ropar, he did his graduation from Government College, Ropar. Subsequently, he obtained the professional degree of LLB and started practice as an advocate. A voracious reader by nature, he took keen interest in agriculture, apart from being a successful lawyer. He joined Indian National Congress through its youth organization, Youth Congress, in the year 1975. And since then, he has been working continuously, untiringly for the people of Ropar district. In 2002, he was appointed as a chairman, Punjab Pollution Board, and parliamentary secretary, Industry and Commerce for Punjab government. He worked as a chairman of various assembly committees. Apart from being associated with party organizations, he was also appointed as a senior senator in Punjab University from 2002 to 2007. With the very rich experience, we would not have had any other one with a better holistic view of education. Without further ado, I would like to invite Rana Sahib to deliver the keynote address. Over to you, Rana Sahib. Thank you so much for being with us. My hearty wishes to all the dignitaries who have taken out their precious time to participate in this webinar. I welcome all the dignified panelists and all the participants to this wonderful conclave. I am hugely thankful to the organizers for choosing Progressive Punjab as the central theme of the webinar. Undoubtedly, the topics of deliberations are some of the very relevant issues that the societies across the globe are facing today. In these testing times, the student fraternity, especially the ones of tender age, are the biggest sufferers, but interestingly, they are the only ones who have shown a wonderful spirit to adapt so easily to the so-called new normal of the world order. Although COVID situation has paralyzed almost every aspect of human existence in some way or the other, but the way our young generation has reacted to the pandemic is a lesson for all of us. They really deserve to be appreciated, applauded for their unique reactionary behavior. I am left with only this much to say, that we must learn from this young generation before we endeavor to teach them. I extend my gratitude to all the organizers, especially Dr. Sumer Singh, who has offered me chance to address this wonderful forum and throw some light on the unique aspects of this wonderful land of Punjab before the dignified panelists enter into their formal discussion on the enlisted subjects. Visibly, the participants are from various parts of the country, so I will resist the temptation to speak in my mother tongue, that is Punjabi. I will rather try to be bilingual using Hindi and English so that everyone understands. I welcome you all. पंजाब भारतीय सभ्यता का उद्गम स्थल है। मुद्दत पहले, बहुत पीछे की हम बात करें तो एशिया के इस भूखंड में पंजाब का एक नुमाया स्थान रहा है। बाहर से लोग आते थे, उनकी बात करूं, बात लंबी होगी, लेकिन एक इंस्टांस मुझे बार बार याद आता है कि 1526 में जब बाबर ने पंजाब की सरजमीन पे पांव रखा तो बाबरनामा में आता है इस बात का जिक्र कि उन्होंने कहा
कि ऐसी अद्भुत धरती, जहां एक पेड़ की एक शाखा को काट करके जमीन में लगा दें तो आपको ताज्जुब नहीं होगा कि 2-3 दिन में वो हरी होकर के अपनी जड़ें खुद ब खुद पकड़ लेगी। ये जरखेज धरती है, इसका नुमाया स्थान है, और ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये पंजाब के मेहनती और बहादुर लोगों की, मेहनतकश लोगों की मेहनत और बहादुरी का मुजस्मा है कि पंजाब ने इस सारे देश में बहुत सा कुछ ऐसा किया है जहां पंजाब को इस बात का श्रेय मिला है कि पंजाब ने पहल की है। पंजाब का लोगों का रहन सहन, यहां की सोच, यहां का काम करने का तरीका, यहां का वे ऑफ लाइफ, इसमें संत सिपाही का जो मिक्सचर है वो बड़ी मुद्दत से है, क्योंकि इन्वेडर हमेशा इस तरफ से आया है। पंजाब को कुचलते हुए निकलना पड़ता था, जिसको दिल्ली जाना होता था, तो पंजाब के लोगों को बार बार इन हमलावरों का शिकार होना पड़ता था और समय मिलते उन लोगों का मुकाबला भी करना पड़ता था। और यही वजह है कि अगर हम देखें कि प्रोग्रेसिव पंजाब जैसे आपने ये थीम लिया है, किसी भी समाज का अगर सही आकलन करना हो, टू बी देयर आर 2 पैरामीटर्स। नंबर 1 सेल्फ सफिशिएंसी, नंबर 2 योर कंट्रीब्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। जहां तक सेल्फ सफिशिएंसी की बात है, पहले गुरु नानक देव जी के जमाने से लंगर प्रथा का शुरू होना अपने आप में एक अद्भुत प्रयास था, जो दुनिया ने ना देखा था, ना दुनिया ने सुना था। लेकिन आप लंगर तभी लगा सकते हैं, लंगर की प्रथा को तभी चालू कर सकते हैं अगर आप खुद में सेल्फ सफिशिएंसी है। जहां तक इस सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें, पंजाब ने हमेशा अपने लिए अन्न पैदा किया है, देश के लिए अन्न पैदा किया है। और लेट 60s में जब हिंदुस्तान में अनाज का अकाल पड़ा और मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मजबूर होकर के यूएस के आगे हाथ फैलाने पड़े थे अनाज के लिए, उस समय भारतीय केंद्रीय सरकार की मदद से, पंजाब के लोगों की मेहनत से जो हरी क्रांति आई है, उसने वो जो परंपरा थी हमारी सेल्फ सफिशिएंसी की अनाज में, ना केवल उसको निरंतर जारी रखा, बल्कि उसको इतना मजबूत किया कि आज देश की जो रिजर्व है, देश के जो अन्न भंडार हैं, उसमें करीब करीब मोर देन 60% सेंट्रल पूल का अनाज जो है वो पंजाब से जाता है। ये अनाज की बात हो गई। और दूसरी हमारी परंपरा है कि पंजाबी लोगों ने हमेशा अपनी सरहदों की राखी करना, अपने देश की राखी करना, अपने देश की सुरक्षा में सब कुछ न्यौछावर करना, ये भी पंजाब की परंपरा रही है। और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपको ताजुब होगा, ये पंजाब की धरती है कि जहां राजे महाराजे जो हुए हैं उन्होंने भी फौज में नौकरी की है। आजादी से पहले, आजादी के बाद हमारे पास जीती जागती मिसाल है कि महाराज पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो एक बहुत बड़ी रियासत के वारिस थे, वो खुद और उनके छोटे भाई राजा मालविंदर सिंह, दोनों भाई थे सगे, दोनों ने ही हिंदुस्तान की फौज में नौकरी की है और हिंदुस्तान की सरहदों की रक्षा करने में अपना योगदान दिया है। ऐसी परंपरा पंजाब की रही है। और ये भी परंपरा रही है, हमारे गुरु साहबान की हमें देन रही है
कि कोई जमाना था कि हर घर से एक आदमी देश की फौज में जाता था और अपना दायित्व निभाता था एक फौजी के तौर पर। यह भी पंजाब की परंपरा रही है और पंजाब का एक नुमाया करैक्टर इस बात में भी रहा है जो हमें दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया है। भाई कन्हैया जी, शायद आपने भाई कन्हैया जी का नाम सुना होगा। आनंद प्रसाद की धरती में गुरु गोविंद सिंह जी को मुगल फौजों ने घेरा डाल रखा था, जंग चल रही थी, लेकिन उस जंग के दौरान भी भाई कन्हैया जो दसम पातशाह के शिष्य थे वो दुश्मन को पानी पिलाते थे, दुश्मन की मरहम पट्टी करते थे। कुछ लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी से शिकायत की कि आपके शिष्य, आपके सिख भाई कन्हैया दुश्मनों को पानी पिलाते हैं, दुश्मनों की मरहम पट्टी करते हैं। तो गुरु साहब ने भाई कन्हैया जी को बुलाया, तो उनसे बात की। तो भाई कन्हैया जी ने बोला कि आप जंग लड़ रहे हैं, जंग से दुश्मनी पैदा होती है, मैं उसके साथ साथ इंसानियत की जो मांग है, मैं इंसानियत को पूरा करता हुआ इन लोगों को जो जख्मी हैं, जो इंजर्ड हैं, इनको पानी भी पिलाता हूं और इनकी मरहम पट्टी भी करता हूं। मेरा कहने का मतलब कि पंजाब में सुरक्षा की दृष्टि से फौजों में जाना जो एक रवायत बनी है, वहां इसका जो ह्यूमन एंगल है, ह्यूमैनिटी की तरफ जो आदमी के दायित्व है, उसको भी पंजाब के लोग कभी नहीं भूले। इस बात को आगे करेंगे, थोड़ी बात लंबी चली जाएगी, लेकिन आप आजकल देख रहे होंगे अखबारों में कि किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पे, जहां लाखों की तादाद में लोग वहां बैठे हैं इस कड़कती सर्दी में, वहां पे अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। वायलेंस का कोई नाम नहीं। और जो वहां के लोग हैं, धरना स्थल के आसपास के जो लोग हैं, सबके लिए आज दिल्ली के बॉर्डर पे लंगर की व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है, कपड़ों की व्यवस्था है, जिस चीज की भी जरूरत है वो आज लोगों को फ्री वहां बांटी जा रही है। तो ये है पंजाब का जो रहन सहन का, पंजाब की सोच का, पंजाब के सोचने के तरीके, पंजाब के लोगों का गुरु साहिबान के प्रति अपनी श्रद्धा, ये सारी चीजों की झलक जो है वो आज दिल्ली के बॉर्डर से मेरा ख्याल में देश के लोग जो हैं वो लाजिम तौर पर देख रहे होंगे। जहां तक आप एजुकेशन की बात करते हैं, इस बात में मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि बेशक पंजाब में बड़े अच्छे अच्छे पीपीएस नाभा, वाईपीएस पटियाला, वाईपीएस मोहाली अच्छे स्कूल हैं, प्राइवेट सेक्टर में है। करीब 53 लाख बच्चे पंजाब के स्कूल गोइंग हैं। 1/2 सरकारी स्कूलों में जाते हैं, 1/2 प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। पिछले समय से काफी मेहनत के बाद जो सरकारी स्कूल है उनका स्तर, उनका लेवल बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे ये मानने में या कहने में कोई संकोच नहीं है कि शिक्षा की 2 नदियां बहती हैं, एक अमीरों की है, एक गरीबों की है। अमीर लोग प्राइवेट स्कूलों में प्रेफर करते हैं और जन साधारण जो है वो सरकारी स्कूलों में जाता है। सरकार ने भरसक प्रयत्न किए हैं, खास तौर पर आज के दिन जब कोविड चल रहा है। ये पंजाब देश का पहला स्टेट है जिसने बच्चों को फ्री ये सारा साजो सामान दिया है, स्मार्टफोन दिए हैं, ताकि स्मार्टफोन की मदद से हमारे जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूलों के वो शिक्षा ग्रहण कर सके। और इस बात का भी सुकून है कि ये स्मार्टफोन जो पंजाब सरकार ने बच्चों को दिए हैं उसका सार्थक नतीजे मिले हैं, बच्चों ने उसका खूब लाभ उठाया है। और पिछले समय में जो नतीजे आए हैं, स्कूलों के रिजल्ट आया है, वो काफी
अच्छा आया है। फिर भी शिक्षा के मामले में अभी कई सुधार होने बाकी हैं। मेरा ये मानना है, जब तक ये जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं, कहीं आईसीएसई है, कहीं सीबीएसई है, कहीं स्टेट लेवल के बोर्ड्स हैं, सबका अपना अपना सिलेबस है, सबका अपना अपना तौर तरीका है शिक्षा देने का। जब तक इनको हम एक नहीं करते, एक लेवल पे नहीं ला करके इनमें यूनिफॉर्मिटी पैदा नहीं करते, तब तक ये जो चशम है, गरीब और अमीर का कह ले, गांव या शहर का कह ले, जैसे भी आप मुनासिब समझे इसको कह सकते हैं, ये चशम जो है ये खत्म होने वाला नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि देश में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे तमाम बोर्ड, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट के हो, सिलेबस सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और जहां तक राइट टू एजुकेशन का सवाल है, राइट टू एजुकेशन की जरूरत थी इस बहुत बड़ी डेमोक्रेसी में, दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे चाइना के बाद आबादी के लिहाज में भी हम सबसे बड़े हैं, यहां इस बात की जरूरत थी कि राइट टू एजुकेशन हो जाए। लेकिन राइट टू एजुकेशन के साथ साथ मैं कहता हूं बेटर हो अगर राइट एजुकेशन हो। केवल एजुकेशन देने से मामला हल नहीं होता जब तक एजुकेशन का जो लेवल है वो ठीक नहीं होता। और बहुत से मौके आपको मिलेंगे देखने में जहां क्वालिटी एजुकेशन की आज भी जो कमी है वो लोगों को देखने में मिलती है और उसका आने वाली नस्लों पे अच्छा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि सिलेबस एक हो, देश में बोर्ड्स का यूनिफॉर्मिटी हो, ताकि सारे देश के बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी आप सही असेसमेंट कर सकते हैं, अपने पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके सही लोग जो है उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। सो ज्यादा लंबी बात ना करता हुआ मैं आपको कहना चाहता हूं कि पंजाब का नुमाया स्थान रहा है, लेकिन हमारे कुछ शिकवे भी हैं। हमारे शिकवे ये हैं कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते हैं, पाकिस्तान हमेशा हमारा दुश्मन रहा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पंजाब में टेररिज्म रहा है, और उस टेररिज्म की वजह से पंजाब का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफी कमजोर हुई। जितनी सेंट्रल फोर्सेस पंजाब में 10-15 साल रही, उन सब का फाइनेंशियल बर्डन पंजाब सरकार को उठाना पड़ा। उसका नतीजा ये निकला कि आज पंजाब 1,30,000 करोड़ का देनदार है। डिफरेंट फाइनेंशियल एजेंसीज का हमने कर्ज देना है। जिस स्टेट पे 1,30,000 करोड़ का कर्ज होगा, उस कर्ज की सर्विस करने में ही स्टेट के सारे जो रिसोर्सेज है वो काम आ जाते हैं। हमारे पास ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती कि हम दूसरे कामों को भी देख सके। इसी के साथ हमारा ये बार बार कहना रहा है दिल्ली सरकार से कि साहब आप इसमें हमारी मदद करें। हमने पड़ोसी मुल्क से प्रॉक्सी वार लड़ी है, वो देश की लड़ाई लड़ी है। अगर देश की लड़ाई लड़ी है, आप इस कर्ज को ठीक करने में, इसको माफ करने में हमारी मदद करें, ताकि आने वाले समय में भी पंजाब अपना जो बनता रोल है देश में अग्रणी होकर के वो हमेशा के लिए करता रहे। इसी के साथ मैं लास्ट में अपनी बात खत्म करने पे कहना चाहता हूं कि आज पंजाब गर्दिश में है। पंजाब के लोग दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, कड़कती इस सर्दी में वो लोग दे आर एजिटेटिंग। केंद्र सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। आई फेल टू अंडरस्टैंड इफ दे एक्सपेक्ट कि जो पंजाबी लोग हैं जिनके बच्चे तो सरहदों पे हैं, लेकिन आज उनके माँ बाप दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, उनको जरूर इस बात का ध्यान करना चाहिए कि देश की सुरक्षा के हित में है ऐसे मसले जल्दी से जल्दी समझे, सुलझ जाएं। और ये उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए कि जो बच्चे सरहदों पे हैं कल को उनको बुला करके अगर फोर्स का इस्तेमाल उन्हीं के पेरेंट्स के खिलाफ उन लोगों से करवाएं, दैट विल नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व द कंट्री इन एनी मैनर। पंजाब बसता रहे, पंजाब इसी ढंग से देश की अगुवाई करता रहे, पंजाब ऊंचा झंडा लेकर के देश के निर्माण में अपना योगदान डालता रहे। इस उम्मीद के साथ मैं आप सबका
बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपसे बात करने का मौका मिला। एंड थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much.